بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل عمر سکلز اور عمر پیاس اکیڈمی۔ ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں آپ کو انگلش لینگویج اور انگلش گرامر کا ایک اور چیپٹر جو ہے اس پر بحث کریں گے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے تو وہ پرسنل پروناؤنس اینڈ کیسز آف پرسنل پروناؤن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ میں نے ابھی تک پرسنل پروناؤن پر بحث نہیں کی ہے، تو آج میں پرسنل پروناؤن پر بحث بھی کروں گا اور اس کے متعلق چند جملے بھی بناؤں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو۔ ہمارا ٹاپک جس طرح میں نے کہا ہے، ہمارا ٹاپک ہے پرسنل پروناؤن اینڈ کیسز آف پرسنل پروناؤن۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے، پرسنل پروناؤن اینڈ کیسز آف پرسنل پروناؤن۔ اور پرسنل پروناؤن کا سب سے پہلے میں ڈیفینیشن کروں گا۔ پرسنل پروناؤن کیا ہے؟ تو all those pronouns which are used to replace inanimate and inanimate nouns. Inanimate nouns and inanimate nouns. تو میرا خیال ہے کہ انیمیٹ اور inanimate nouns آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ inanimate nouns کون سے ناؤن ہیں؟ یہ وہ ناؤن ہے جو زندہ ناؤن ہو، جو زندہ چیزوں کے لیے رکھ کے گئے ہو تو اس کو ہم انیمیٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اور انیمیٹ کا مطلب ہے جو بے جان چیزوں کے نام ہے تو اس کو ہم انیمیٹ ناؤن کہتے ہیں، جیسے ٹیبل ہے، چیئر ہے، اور اسی طرح ونڈو ہے، ڈور ہے، فین ہے، لیمپ ہے، یہ انیمیٹ ہے۔ اور مین، وومن، گرل، بوائے اور بفیلو، کھاؤ، گوٹ، شیپ ایکسیٹرا جو ہے یہ انیمیٹ ناؤن ہے۔ تو تمام انیمیٹ اور تمام انیمیٹ ناؤن کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم پرسنل پروناؤن استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہی انیمیٹ ناؤن کے لیے ہم کون کون سے پروناؤن استعمال کریں گے۔ تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم ہی استعمال کریں گے، شی استعمال کریں گے، اٹ استعمال کریں گے، دے استعمال کریں گے، آئی وی یو، مطلب 7 پروناؤن پرسنل پروناؤن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں انیمیٹ ناؤن کے لیے بھی اور انیمیٹ ناؤن کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو انیمیٹ ناؤن کے لیے ہم کیا کچھ استعمال کریں گے؟ انیمیٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے ہی، شی، اٹ، دے، آئی وی یو، اور انیمیٹ کے لیے ہم صرف اور صرف اٹ اور دے کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہی، شی انیمیٹ کے لیے نہیں آتا، اسی طرح آئی وی یو بھی انیمیٹ کے لیے نہیں آتا، صرف انیمیٹ کے لیے اٹ اور دے آتا ہے۔ There are three persons for whom we use personal pronoun. 3 قسم کے اشخاص ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جس کے لیے ہم پرسنل پروناؤن استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، ایک کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور ایک کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو فرسٹ پرسن جو ہے یہ وہ پرسن ہے جس کو ہم متکلم بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہم متکلم کہتے ہیں، یعنی بولنے والا۔ اور سیکنڈ پرسن وہ ہے جس کے ساتھ ہم مخاطب ہے، یعنی جو ہمارے سامنے مخاطب ہے اور ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخاطب یا سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور تھرڈ پرسن وہ ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، جس کے بارے میں گفتگو ہو، جس کے بارے میں بحث ہو رہی ہو تو اس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو فرسٹ پرسن کون ہو گئے؟ فرسٹ پرسن آئی ہو سکتا ہے اور وی ہو سکتے ہیں۔ آئی میں بات یا اکیلا ایک شخص کرے گا یا کئی لوگ اکٹھے ایک گروپ کی شکل میں بھی بات کر سکتا ہے کہ ہم تمام جائیں گے یا ہم تمام آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملے جب انگلش میں ہم بولتے ہیں تو اس کے لیے ہم وی استعمال کرتے ہیں۔ تو آئی اور وی جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ یہ آئی اور وی جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہو گئے، جبکہ یہ یو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ تو آئی سنگولر ہے،
I सिंगुलर है, we प्लूरल है, जबकि you सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और you जो है ये मुखातब या हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके साथ गुफ्तगू हो रही हो तो उसके लिए हम you इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात हो रही हो, वो ख्वाह हाजिर हो, इस जगह गुफ्तगू हो रही है, वहां मौजूद हो या मौजूद ना हो, फिर भी उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि थर्ड पर्सन वो है जो गायब हो, जो वहां मौजूद न हो। अगर वो मौजूद भी है लेकिन उसके बारे में बात हो रही है तो हम उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। डॉक्टर और जो अटेंडेंट है उसके दरमियान बात हो रही है मरीज के बारे में, मरीज भी वो करीब लेट रहा है, तो ये मरीज जो है थर्ड पर्सन हो गया और ये डॉक्टर फर्स्ट पर्सन हो गया और जो अटेंडेंट है वो सेकंड पर्सन हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है यह गुफ्तगू करने वाला शख्स होता है, यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन जो है जिसके साथ बात हो रही है वो शख्स है, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही हो, तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। हम मजीद आगे चलते हैं और तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में चंद मिसालें आपको देते हैं। यही मिसालें ऐसी मिसालें हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भी इसके बारे में मैं बता चुका हूं, और मैंने सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर अभी शुरू किया है, सिर्फ उस स्ट्रक्चर पे मैं जा रहा हूं। अगले मजीद स्ट्रक्चर में बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब है, और वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब के साथ क्या है? वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट, यानी नीचे मैं लिखता हूं, ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यही स्ट्रक्चर मैंने शुरू की है। सबसे पहले में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे, और इस कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट की 5 किस्में भी मैंने आपको बताई है अपने पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख ले। तो हमारा जो आजकल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर चल रहा है तो वो SVC स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर है, और जो एग्जाम्पल हम देते हैं तो इसी स्ट्रक्चर पर देते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए थे इसी स्ट्रक्चर में, और आज मैं इसी स्ट्रक्चर में पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। हमारा सबसे पहला फिक्रा जो है यही आई एम ऑन द रोड, आई एम ऑन द रोड। तो यहाँ आई जो है यही सब्जेक्ट है, आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। एम जो है यही लिंकिंग वर्ब है, एम क्या है? एम लिंकिंग वर्ब है, और ऑन द रोड जो है यही कॉम्प्लीमेंट है। ऑन द रोड क्या है? ऑन द रोड कॉम्प्लीमेंट है। आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, और ऑन द रोड जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। अब देख ले, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हमने 2 किस्में बताई थी। एक क्या था? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव था, और एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव था। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव, हमने कहा था कि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या करता है? वो सब्जेक्ट को रीनेम करता है, और प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या करता है? वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ आई एम ऑन द रोड, तो ऑन द रोड तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो श्योर है। अब हम ये देखते हैं कि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है या प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। तो ऑन द रोड ने क्या किया है? इसने आई को रीनेम नहीं किया है, बल्कि आई को मजीद डिस्क्राइब किया है कि आई इस वक्त वेयर इज आई दिस टाइम, तो इस वक्त आई जो है वो सड़क पर है, तो इसको मजीद डिस्क्राइब किया है। तो इसलिए यही कॉम्प्लीमेंट जो है यही प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। अगर मजीद हम इसके बारे में सोच ले तो ऑन द रोड जो है यही प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। प्रेस के बारे में एक तफसीली वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, प्रेस पर मैं बहस करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने अपने पिछली वीडियो में जो जिस प्रेस की बात की है तो प्रीपोजिशनल प्रेस की हमने बात की है, और इसी तरह नाउन प्रेस की भी थोड़ी बहुत बहस हमने की है। तो यही ऑन द रोड जो है यही क्या है? यही प्रीपोजिशनल प्रेस है, और एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, और यह एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है, और ये सब्जेक्ट आई को मॉडिफाई करता है, उसको
مزید ڈسکرائب کرتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. آن دا روڈ اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. تو اس لیے یہ ایڈجیکٹو ہو گیا اور کمپلیمنٹ ہو گیا. مزید ہم وی آر آؤٹ آف ٹاؤن اس کا انالیسس کریں گے. وی آر تو وی سبجیکٹ ہے. یہ وی کیا ہے؟ یہ وی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. یہ وی جو ہے یہ سبجیکٹ ہوا، اور یہ آر جو ہے یہ لنکنگ ورب ہے. یہ آر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لنکنگ ورب ہے. اور آؤٹ آف ٹاؤن جو ہے یہ کمپلیمنٹ ہے. آؤٹ آف ٹاؤن کمپلیمنٹ ہے. اب آؤٹ آف ٹاؤن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. وی آر آؤٹ آف ٹاؤن، وی آر ویئر. تو آؤٹ آف ٹاؤن جو ہے ان وی کے بارے میں مزید انفارمیشن دیتا ہے. وی آر آؤٹ آف ٹاؤن یعنی ہم ٹاؤن سے باہر ہے، ہم ٹاؤن سے باہر ہے. تو آؤٹ آف ٹاؤن جو ہے یہ پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہے جو ایز اے کمپلیمنٹ یہاں استعمال ہوا ہے، اور کمپلیمنٹ کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ آر لنکنگ ورب کے ذریعے ملاتا ہے. اب مزید میں یو اور مائی بردر، یو اور مائی بردر، تو دیکھ لے یہی یو اور مائی بردر دونوں ایک ہی شخص کو اشارہ کرتا ہے. یو تم، مائی بردر میرا بھائی، تو تم اور میرا بھائی ایک ہی شخص ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ مائی بردر نے کیا کیا ہے، اس نے یو کو رینیم کیا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ یو کو رینیم کیا ہے. اور وہ کمپلیمنٹ جو اپنے سبجیکٹ کو رینیم کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پریڈیکیٹ نومینیٹو. یہاں مائی بردر جو ہے یہ کمپلیمنٹ ہے، لیکن کمپلیمنٹ کا کون سا قسم ہے؟ تو یہ پریڈیکیٹ نومینیٹو کا قسم ہے. یہ آر یہاں لنکنگ ورب ہے. میں یہاں تھوڑا سا یہاں لکھتا ہوں. آر کیا ہے؟ لنکنگ ورب ہے. اور یو کیا ہے؟ یو جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. یہ سبجیکٹ ہے. یو کیا ہے؟ یو سبجیکٹ ہے. ہم مزید آگے چلتے ہیں. اور یو اور مینی ان نمبرز، یو اور مینی ان نمبرز. تو مینی ان نمبرز یہ بھی انفارمیشن ہے یو کے بارے میں. ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ یو جو ہے یہ مینی ہے یا ایک ہے. ایک کو بھی ہم یو کہتے ہیں اور مینی کو بھی ہم یو کہتے ہیں. تو مینی ان نمبر سے ہمیں پتہ چلا، مزید انفارمیشن ہمیں مل گئی کہ یہ یو جو ہے یہ مینی ان نمبر کے لیے استعمال ہوئے ہے. اور اس لیے مینی ان نمبر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انفارمیشن دیتا ہے یو کے بارے میں. تو یہی کمپلیمنٹ تو ہے، یہی تو لازمی بات ہے کہ یہ کمپلیمنٹ ہے. لیکن کون سا کمپلیمنٹ ہے؟ یہ پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہے. پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہے. آپ کو اس کے بارے میں اگر کوئی شک و شبہ ہو تو آپ ہمارے پچھلے ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو اور پریڈیکیٹ نامینیٹو پر کمپلیٹ بحث کی ہے. He is on this, he is out this time. He is where? He is out. He is out this time. تو out this time جو ہے یہی یہاں کمپلیمنٹ ہے. کس قسم کا کمپلیمنٹ ہے؟ یہی پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہے. اس جو ہے یہ لنکنگ ورب ہے، اور ہی جو ہے یہی سبجیکٹ ہے. He is in my house. He is where? He is in my house. تو in my house کمپلیمنٹ ہے. کس قسم کا کمپلیمنٹ ہے؟ یہی پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہے. in my house انفارمیشن دیتا ہے. اور in my house اصل میں پریپوزیشنل فریز ہے. کیا ہے؟ پریپوزیشنل فریز ہے جو کہ بطور ایڈجیکٹو یہاں استعمال ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ کمپلیمنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پریڈیکیٹ نامینیٹو ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. پریڈیکیٹ نامینیٹو پھر تین قسم کے ہیں: ناؤن، ناؤن فریز، ناؤن ایڈجیکٹو فریز، اور اسی طرح پریپوزیشنل فریز یوز ایز این ایڈجیکٹو. تو یہ کمپلیمنٹ ہوا، یہ لنکنگ ورب ہوا، اور یہ سبجیکٹ ہوا. تو اس طرح کمپلیمنٹ سبجیکٹ اپنے کمپلیمنٹ اور لنکنگ ورب کے ساتھ مل کر ایک سمپل جملہ بناتا ہے، ایک سمپل سینٹنس بناتا ہے. یہی اس کی ترکیب ہے. میں اپنے ہر جملے کا ترکیب بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کس طرح ترکیب بنا ہوا ہے. It is
a dog of Nu'man. It is a dog of Nu'man जो है, it is तो it और a dog of Nu'man दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा है. आप सोच ले इस फिक्रे के बारे में. it a dog of Nu'man, ये दोनों क्या है? एक ही कुत्ते को इशारा कर रहा है. मतलब ये हुआ कि a dog of Nu'man जो है, यही it को रीनेम करता है. क्या करता है? तो यही तो कॉम्प्लीमेंट है, यही तो लाजिमी बात है, कॉम्प्लीमेंट है. लेकिन किस किस्म का कॉम्प्लीमेंट है? तो यही प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है. इल जो है यही लिंकिंग वर्ब है और इट जो है यही सब्जेक्ट है. इट क्या है? इट सब्जेक्ट है. अब हम आगे चलते हैं. दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ हियर, वो यहाँ के बाशिंदे हैं. दे आर इनहेबिटेंट ऑफ हियर, तो दे आर इनहेबिटेंट्स, वो बाशिंदे है. तो वो और बाशिंदे, यहाँ के बाशिंदे, ये दोनों एक ही शख्स या एक ही अशखास के मजमूए को इशारा करता है. तो दे और इनहेबिटेंट्स ऑफ हियर यही एक दूसरे को रीनेम करता है. तो इनहेबिटेंट ऑफ हियर जो है ये कॉम्प्लीमेंट हुआ और ये दे को रीनेम करता है, इसलिए ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है और लिंकिंग वर्ब है और इस जो है ये सब्जेक्ट है. तो हमने आज अभी तक किस किस्म के पेपरों को हमने पढ़ा है, किस किस्म के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है. हमने ईस्वीसी स्ट्रक्चर को पढ़ा है. ईस्वी अभी हमने शुरू नहीं किया है, ईस्वी को भी अभी हमने शुरू नहीं किया है. यही ईस्वीसी स्ट्रक्चर जो है यही काफी हद तक हम पढ़ेंगे. हम सारे जो प्रेजेस है, 12 किस्म के प्रेजेस है, वो एक एक हम करके यहां लगाएंगे और इस तरह ईस्वीसी स्ट्रक्चर वाले जुमले बनाएंगे. लेकिन आप हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा रहेगा. हम आगे चलते हैं और इसी तरह मैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहस करता हूं. पर्सनल प्रोनाउन तो साथ है, ये तो हमें पता है और बहुत आसान भी है. लेकिन बाज़ औक़ात लोग पजल जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन ये कौन सा केस है और किस तरह का इस्तेमाल होता है. तो हम आगे जाकर इस पर मजीद भी बहस करेंगे. लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है इसकी 4 केसेस हो सकती है. एक और केस भी हो सकता है, उसको ओकेटिव केस हम कहते हैं, लेकिन उसको बाद में बहस करेंगे. आज मैं सिर्फ इन 4 केसेस पर बहस करता हूं. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस वो केस है पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट की जगह लेता है, जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है. तो इसको हम इसलिए सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहते हैं कि ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट एक नाउन होता है, अगर उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन हम लेके आए तो हम किस केस में इस्तेमाल करेंगे? वो हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे. नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस एक ही केस है, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं. यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. यहां इसके 3 पर्सन भी मैंने बताए हैं. आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है. ये आई और वी जो है यही क्या है? फर्स्ट पर्सन है. इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यही है जो एक्शन रिसीव करता है. एक्शन क्या करता है? एक्शन रिसीव करता है. तो यहां ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो एक्शन रिसीव करे किसी जुमले में, तो वो फिर हम आई और वी की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? उसको हम मी और अस, मी आई के लिए और अस वी के लिए. तो आई जो है सब्जेक्टिव केस में आई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आई फिर क्या है? फिर मी है. और वी जो है सब्जेक्टिव केस में वी है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए या एक्यूजेटिव केस में आ जाए तो ये अस इस्तेमाल होगा. क्या इस्तेमाल होगा? अस इस्तेमाल होगा. तो आप यही गौर कर रहे जुमले पर कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी जुमले में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए, यानी एक्शन रिसीव करने वाला हो या जिसके लिए कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे. तो ये 7 जो प्रोनाउन है इसके ऑब्जेक्टिव केस कौन से हैं? मी है, अस है, यू है, हिम है. और तो आई का
ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का अस है, यू का यू है, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है और दे का दिम है। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा किसी भी जुमले में, यानी एक्शन को या रिसीव करेगा या इसके लिए कोई एक्शन वाकया होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है कि जो एक्शन जो पहले नंबर पर एक्शन रिसीव करता है और दूसरे नंबर पर एक्शन जिसको मिले तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ही गिव अ पेन टू मी या ही गिव मी अ पेन, तो उसने मुझे पेन दे दिया। तो पहले एक्शन किसने रिसीव किया? एक्शन पेन ने रिसीव किया। एक्शन पेन को मिल गया, पेन उठ गया अपनी जगह से और पेन किसको दे दिया गया? मुझे दे दिया गया। तो पहले एक्शन जो है वो पेन को रिसीव हुआ और इसके बाद जो एक्शन जो है मुझे रिसीव हुआ। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो बराह रास्त एक्शन रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसके लिए वो एक्शन हो चुका होता है। जिसके लिए एक्शन हो जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस पर मजीद हम बहस करेंगे इंशाल्लाह। पोजीशन एडजेक्टिव क्या है? ये असल में पोजीशन एडजेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव है। इसको हम किस में पर्सन प्रोनाउन के ज़मरे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले लोग इस्तेमाल करते थे लेकिन आजकल यही पोजीशन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि यह नाउन के मीनिंग में तब्दीली ले आता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। और जो चीज नाउन को मॉडिफाई करे तो फिर वो इसका हक नहीं रखता कि उसको हम प्रोनाउन बोले, बल्कि उसको हम लाजिमी बात है उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये असल में पोजीशन एडजेक्टिव है। ये क्या है? पोजीशन एडजेक्टिव, यानी यही पोजीशन दिखाता है किसी भी नाउन के साथ और ये नाउन से पहले लगेगा, ये नाउन से पहले लगेगा। तो आई का पोजीशन केस क्या हुआ? माई। वी का क्या हुआ? और। यू का क्या हुआ? यूर। ही का क्या हुआ? हिज। शी का क्या हुआ? हर। इट का क्या हुआ? इट्स। दे का क्या हुआ? दियर। और इसके आगे फिर हम नाउन लगाएंगे, यानी माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, दियर बुक। तो ये इसके साथ पोजीशन यानी कब्ज़ मलकियत दिखाता है। अब हम आखिरी केस की तरफ आते हैं और उसको हम पोजीशन या जेनिटिव केस कहते हैं। तो ये अमूमन फिक्रे के आखिर में आता है, तो कभी कभी फिक्रे के शुरू में भी आ सकता है कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज माइन, इट इज माइन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइन इज ओल्ड या माइन इज टर्न आउट, यही मेरा है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइन इज टर्न, माइन अगर मैं लिखूं माइन इज टर्न, TORN, माइन इज टर्न, इस तरह ये बहरहाल माइन इज टर्न, मेरा वाला जो है वो फटा हुआ है, मेरा वाला जो है फटा हुआ है। तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन अमूमन ये फिक्रे के आखिर में आता है और इस सब्जेक्ट के साथ क्या बताता है? सब्जेक्ट के साथ कब्जा और मलकियत बताता है। फॉर एग्जांपल इट इज माइन, तो ये सब्जेक्ट के साथ मलकियत बन गया ना। इट इज माइन ये मेरा है, इट इज आवर्स ये हमारे है, इट इज यूअर्स ये तुम्हारा है, इट इज यूअर्स ये तुम्हारे हैं, इट इज हिज ये उसका है, इट इज हर्स ये उसकी है, इट इज दियर्स ये उनके है, वगैरह वगैरह। तो हम इस तरह इसके जुमले बता सकते हैं या बना सकते हैं। हम आगे चलते हैं और इसी तरह हम जो कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि ये पर्सन प्रोनाउन दो तीन मिलकर एक सब्जेक्ट बनाता है और उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। यानी आई, यू एंड ही वर इन द मीटिंग यस्टरडे, मैं, तुम और वो कल मीटिंग में थे। तो ये आई, यू एंड ही मैंने इस्तेमाल किया है, ये मैंने गलत इस्तेमाल किया है, इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह तीन किस्म के पर्सन प्रोनाउन इकट्ठे हो जाए जिसमें थर्ड पर्सन भी हो, सेकंड भी हो और फर्स्ट भी हो, तो तरीका ये है कि हम पहले थर्ड पर्सन को लेके आएंगे, फिर सेकंड को लेके आएंगे और फिर फर्स्ट को लेके आएंगे। यानी ही, यू एंड आई वर इन अ मीटिंग यस्टरडे, तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। इसी तरह ही एंड मी नीचे मैंने लिखा है ही एंड मी और इन अ होटल, वो और मैं एक होटल में है।
ओह और मैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ मी मैंने ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया है, हालांकि ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्योंकि बतौर सब्जेक्ट यहाँ लगा है, यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ही एंड मी कंपाउंड सब्जेक्ट है और इसमें मी नहीं होना चाहिए बल्कि ही एंड आई होना चाहिए। नीचे मैंने इसकी करेक्शन की है, ही एंड आई आर इन अ होटल, ही एंड आई आर इन अ होटल। तो ही एंड आई जो है ये करेक्ट फॉर्म है, ही एंड मी करेक्ट फॉर्म नहीं है। मी इज इन अ पार्क, समटाइम स्पीकिंग में लोग इस तरफ भी बोलते हैं मी इज इन अ पार्क, वेयर आर यू, मी इज इन अ पार्क। तो मी गलत है, क्योंकि यहाँ मी जो है सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हुआ, आई एम इन अ पार्क, आई एम इन अ पार्क। इट्स हिम, इट्स अ हिम, यही वो है। अगर लोग इस तरफ बोले तो ये गलत है, इट्स हिम नहीं होना चाहिए। ये चूंकि सब्जेक्ट की तरफ या क्या कौन से केस है, पोजिटिव केस की तरफ इशारा है कि ये उसका है। अगर हम इस तरफ बोलना चाहे तो इसके लिए इट्स हिम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इट इज हिज, इट इज हिज। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये पर्सनल प्रोनाउन के केसेस और पर्सनल प्रोनाउन पर मैंने बहस की है और चंद एग्जांपल भी मैंने आपको दिए हैं। बस इस पर मैं इक्तिफा करता हूं। अगली लेक्चर के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही काफी, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।